हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं अस्तमर एंड हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ colloids. Yes, colloidal solution or colloids can be classified into three classes. First classification we studied already on the basis of physical state of disperse phase and dispersion medium. There are 8 types of colloidal salts. Second, we studies or classified on the nature of force act between the disperse phase and dispersion medium, lyophilic and lyophobic colloidal salts. Lyophilic colloidal salts, that means colloidal solutions which contain liquid loving, that means some more efficiency or greater efficiency with liquid. Lyophobic colloidal, water heating or liquid heating, not for water. If we consider dispersion medium is water, then we can we say hydrophilic and hydrophobic. Yes. Now third classification we studies on the basis of size of particles, the nature of size of particles. Yes. So let's go start that chapter. Third classification of the colloidal solution, we have colloidal salt on the basis of size of particle and nature of size of particles. Basis of size of particles. So on the basis of size of particles, which particles? Disperse phase particles. Mainly we consider disperse phase particles. On the basis of size of disperse phase particles, colloidal salt can be considered into 3 classes: micromolecule, macromolecule and associate colloidal salts. There are 3 types of colloidal solution. You have salt, three types of colloids on the basis of size of disperse phase particles. First is micromolecule. Colloids. Second is macromolecules. And third is associate colloids. Yes. So now we consider first micromolecule colloidal salt. Colloids or colloidal solution in which size of particles are so small. These particles, which particle size? Disperse phase particles. These particles are aggregate together. They gains the range of colloidal salt particles. That means between 1 nanometer to 1000 nanometers. So such types of particle is known as micromolecules colloids. Yes. ऐसा colloidal solution जिसमें particles की साइज होती है क्या होती है? बहुत ही छोटी होती है। छोटी का मीनिंग होता है particles होते हैं, which particles? disperse phase particles होते हैं, वो 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। जब ये पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल क्या करते हैं? आपस में एग्रीगेट होते हैं, दैट मीन्स आपस में कंबाइन होकर जुड़ के क्या बनाते हैं?
जो कॉलोइडल सॉल जो होता है, कॉलोइडल पार्टिकल्स उसकी रेंज को गेन करते हैं, गेन करके क्या बनाते हैं, कॉलोइडल सॉल बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल कॉलोइडल सॉल। और डाई सॉल्यूशन small particles are get aggregate together to gain range of colloidal colloidal size particles, that means more than 1 nanometer to form micromolecule colloids. नाम से पता चल रहा है माइक्रो यानी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। स्मॉल पार्टिकल होने की वजह से वो कॉलोइडल सॉल एक्ट नहीं करते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपस में जॉइंट होते हैं, कंबाइन होकर क्या करते हैं, जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उसकी रेंज को गेन करते हैं। गेन करके जो मिक्सचर बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको अपन बोलते हैं कॉलोइडल सॉल। यस, इसमें मेनली अपन कंसिडर कर सकते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, मेटलिक सॉल होता है, सच एज गोल्ड सॉल है, सिल्वर सॉल है, ये सभी इनके एग्जाम्पल्स हैं। Examples: metallic colloid salt, metallic colloids such as gold salt, this is a silver, gold salt, Au gold, and sulfur salt. एक्सेप्टराज। इस टाइप के जो कॉलोइड्स होते हैं क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। यस, ये जो है माइक्रोमोलिक्यूल जो कॉलोइडल सॉल्ट होते हैं क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ कॉलोइड्स अनस्टेबल। स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टेबलाइजिंग एजेंट जो होते हैं क्या करते हैं, इनको अपन मिक्स करते हैं। इस टाइप के कॉलोइडल सॉल्ट जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं। स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सम स्टेबलाइज एजेंट जो होते हैं इसको हम क्या करते हैं, इसमें मिक्स करते हैं। सम स्टेबलाइजर आर यूज्ड टू स्टेबलाइज ऑफ सच टाइप ऑफ कॉलोइड्स। यस, तो ये फर्स्ट हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, माइक्रोमोलिक्यूल कॉलोइड्स। नाउ सेकेंडली कंसिडर मैक्रोमोलिक्यूल कॉलोइड्स। ये 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन इसका। यूजुअली जो क्वेश्चन जो सीबीएसई वालों को पूछ ही लेते हैं, classify the colloidal salt on the basis of size of particle and nature of size of dispersed phase particles। तो dispersed phase particles इनकी साइज के अकॉर्डिंग हमें क्लासिफाइड करना है, 3 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं। सो सेकेंडली कंसिडर मैक्रोमोलिक्यूल्स। कॉलोइड्स। अब मैक्रोमोलिक्यूल से यहाँ से पता चला है, मैक्रो दैट मीन्स पार्टिकल्स कैसे हैं, लार्ज साइज के,
मैक्रो दैट मीन्स बिगर लार्जर पार्टिकल्स दैट मीन्स इनकी पार्टिकल की जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेशली यहाँ पे जॉइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल की जो साइज़ होती है क्या होती है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर, बेसिकली अपन कह सकते हैं 1000 नैनोमीटर से क्या होती है कम होती है। और ये पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉलोइडल सॉल्ट दिस पार्टिकल्स आर डिसोसिएट इनटू रेंज ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स दैट मीन्स 1 से लेके 1000 के बीच की रेंज को गेन करते हैं और गेन करके जो कॉलोइड्स बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल कॉलोइडल सॉल्ट। इनिशियली पार्टिकल्स है वो क्या है बड़े हैं। मैक्रो का मीनिंग होता है लार्ज साइज के मॉलिक्यूल है पार्टिकल्स है, विच पार्टिकल्स डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं डिसोसिएट होते हैं, ब्रेकडाउन होकर क्या करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स दैट मीन्स रेंज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर्स को गेन करके क्या बनाते हैं कॉलोइडल सॉल्ट बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। यस, एग्जाम्पल के फॉर्म हम कंसिडर कर सकते हैं प्रोटीन है, रबर है, प्लास्टिक है, यस पॉलीथीन वगैरह। ये जो है सिंथेटिक पॉलीमर्स है जो माइक्रोमोलिक्यूल सिंथेटिक पॉलीमर के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। सो कॉलोइडल सॉल्ट या फिर ये कह सकते हैं लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स आर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स aggregate together to form range of colloidal size particles. दैट मीन्स क्या होती है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर्स। Such types of colloids are called macromolecule colloids. We can consider examples of proteins, lipids, salt, protein, lipid, salt या colloids, स्टार्च, सेल्यूलोज। ये तो है नेचुरल पॉलीमर से मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर है। यस, ये नेचुरल पॉलीमर्स के फॉर्म में बनाते हैं और सिंथेटिक के फॉर्म में भी हम कंसिडर कर सकते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स किसको कंसिडर करते हैं कॉलोइडल सॉल्ट जिसको कंसिडर कर सकते हैं सच एस पॉलीथीन, टेरिलिन, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। यस, पॉलीथीन है, टेरिलिन है, ये सभी पॉलीमर्स के फॉर्म इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस टाइप का कॉलोइड जो होता है क्या होता है क्वाइट स्टेबल होता है। यस, such types of colloid is quite stable। ये ज़्यादा स्टेबल होता है रियल में। जो कॉलोइड सॉल्ट यही है इसके। कौन सा कॉलोइड है मैक्रोमोलिक्यूल कॉलोइड सॉल्ट। थर्ड वन कंसिडर करते हैं एसोसिएट कॉलोइड्स।
एसोसिएट कॉलॉइड्स का एग्जाम्पल के फॉर्म हम मिसेल कंसिडर कर सकते हैं। एसोसिएट कॉलॉइड्स में क्या होता है, जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब इसकी कंसंट्रेशन जो होती है क्या होती है, बहुत ही लो होती है, उस केस में दिस इज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जब डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स होती है उस मिक्सचर में या जो सॉल्यूशन दे रखा है उसमें उसकी कंसंट्रेशन जो होती है क्या होती है, लो होती है। लो कंसंट्रेशन में ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक काम करता है। और जब कंसंट्रेशन जो होती है इसकी हाई होती है, हाई का बेसिकली मीनिंग होता है अबव द मिसेल क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, उस केस में ये क्या करता है, इट इज़ एक्ट एज अ कॉलोइडल सॉल्यूशन या कॉलोइडल सॉल्ट। सच टाइप्स ऑफ कॉलोइडल इज नोन एज एसोसिएट कॉलोइडल सॉल्ट। और एग्जाम्पल की फॉर्म हम कंसिडर कर सकते हैं मिसेल। At the low concentration of substance or dispersed phase particles, at the low concentration of a particles or dispersed phase, in a solution, is act as strong electrolyte. Yes, strong electrolyte solutions. But at higher concentration of dispersed phase particles की concentration क्या करते थे, हायर कर देते हैं। is act as a कॉलॉइड्स। इस टाइप का कॉलॉइड जो सॉल्यूशन होता है। अब एक एग्जांपल के हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, मिसेल कंसिडर करते हैं। इस टाइप के जो कॉलॉइड्स होते हैं कब बनते हैं, एक तो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, टेम्परेचर कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, और एक कंसंट्रेशन कंसिडर करते हैं। उससे मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होती है वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जहाँ पे ये पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, गेट एग्रीगेट टुगेदर, दैट मीन्स वो कंबाइन होकर क्या करते हैं, या वो मिसेल लाइक एक्ट करते हैं, मिसेल बनाते हैं, कॉलॉइड्स लाइक बनाते हैं। इसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। ये जो बनता है कब कहाँ पे बनता है, एक होता है टेम्परेचर होता है जिसको बोलते हैं TK बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। और जो कंसंट्रेशन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोलते हैं। सो दिस टाइप ऑफ कॉलॉइडल is called associate colloids. एग्जाम्पल के फॉर्म हम जो कंसिडर करते हैं क्या करते हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन जो होता है, सॉफ्ट कॉलॉइड्स है। सॉफ्ट और डिटर्जेंट कॉलॉइड्स होता है, इसका एग्जाम्पल है। ये किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, मिसेल के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। एक कंडीशन नंबर लेते हैं, ये ध्यान रखिए कि ट्रैप टेम्परेचर होता है क्या होता है, और क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन जो होती है क्या होती है। मिसेल जो है वो भी इसका एक एग्जांपल है। और ये पार्टिकल्स जो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, जो बनाते हैं इसको हम बोलते हैं मिसेल बोलते हैं। पार्टिकल्स आर गेट एग्रीगेट टुगेदर, और एक मिसेल में जो होते हैं क्या होते हैं, स्पेशली कंसिडर करें सॉप को लेते हैं तो सॉप के जो अराउंड 100 पार्टिकल्स होकर मिलकर क्या बनाते हैं, कम से कम 100 होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये पार्टिकल्स कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक मिसेल बनाते हैं। अब मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं, हाईएस्ट टेम्परेचर कहते हैं, जहाँ पे ये पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, एक्ट एज अ मिसेल। इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं।
थोड़ा सा ध्यान रखना, डिफाइन करने के लिए पूछ सकते हैं क्या होता है। हाईएस्ट टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पे क्या बनता है, मिसेल बनता है। Missile is formed craft temperature, जिसको क्या यूज लेते हैं, TK। और एक होता है CMC क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। यहाँ पे भी वही मैक्सिमम कंसंट्रेशन कंसिडरिंग करेंगे जहाँ पे क्या बनता है, मिसाइल बनता है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स स्पेस पार्टिकल्स पर मिसाइल इज फॉर्म, इसको बोलते हैं CMC बोलते हैं, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन बोलते हैं। That missile is form is called CMC क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। जब सॉफ्ट के पार्टिकल्स होते हैं उसकी कंसंट्रेशन जो होती है CMC से कम होती है, उसके साथ मिसाइल वहीं बनता है। और टेम्परेचर होता है, ड्राफ्ट टेम्परेचर जो होता है उससे कम होता है, तभी जो मिसाइल जो है नहीं बनता है। मिसाइल के लिए जो कंडीशन चाहिए, एक तो क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन जो होनी चाहिए, और सेकंड जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होता है वो क्या होना चाहिए, क्राफ्ट टेम्परेचर उससे ऊपर होना चाहिए। इससे लो टेम्परेचर और लो कंसंट्रेशन पे जो मिसाइल जो होते हैं, दैट मीन्स ये पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स वगैरह जो है ये एग्रीगेट होके ये नहीं बनाते हैं। तो मिसाइल में हम क्या कंसिडर करते हैं, मिसाइल होता क्या है, कैसे बनता है। मिसाइल में क्या होते हैं, सब मॉलिक्यूल्स होते हैं या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या करते हैं, गेट एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स। एक बड़ा सा पार्टिकल का क्लस्टर बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं, उसको ही बोलते हैं मिसाइल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसाइल के बारे में आपको पूछ सकते हैं। ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, क्या कहते हैं, गेट एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ सॉफ्ट आर एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ स्फीयर कह सकते हैं, क्लस्टर कह सकते हैं। यस, क्लस्टर एक मॉलिक्यूल का बड़ा सा एक क्लस्टर बनाता है, इसको कौन बोलते हैं, ये क्लस्टर जो इसको ही बोलते हैं दिस क्लस्टर ऑफ पार्टिकल इज नोन एज मिसाइल। एक मिसाइल जो इसमें क्या होते हैं, नियर अराउंड द 100 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कम से कम 100 होने चाहिए, 100 से कम जो है वो मिसाइल नहीं बनता है। इन अ मिसाइल around the hundreds of molecules are present या aggregate together।
यस, ये पार्टिकल्स होते हैं, 100 पार्टिकल्स होते हैं कंबाइन होकर, स्पेरिकली फॉर्म में कंबाइन होकर एक क्लस्टर बनाते हैं। उस क्लस्टर को क्या बोलते हैं? मिसेल बोलते हैं। एक मिसेल में जो है अराउंड 100 पार्टिकल्स हो सकते हैं। यस, अब मिसेल जो हम जो पढ़ रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं? सॉप पढ़ रहे हैं। सॉप जो होता है वो क्या होता है? ये 100 पार्टिकल्स होते हैं। मिसेल कैसे बनाते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। पहले तो हमें लेना का सॉप होता क्या है? सॉप जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं। किसके? सोडियम या पोटेशियम एसिट्रेट्स के होते हैं। एसिट्रेट जो होता है उसका होता है। तो सॉप इज अ हायर मॉलिक्यूलर मासेस कंटेनिंग फैटी एसिड्स कह सकते हैं। एसिड्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम एसिट्रेट। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट भी कह सकते हैं, एसिट्रेट कह सकते हैं। यस, जनरली अपन इसका जो फॉर्मूला कंसिडर करते हैं सो क्या करते हैं? C17H CO Na या K की फॉर्म कंसिडर करते हैं। यस, C17H33CO या Na की फॉर्म इसको अपन क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। या ये जनरली जो है सॉप है, सॉप के लिए कंसिडर करते हैं। अब सॉप जो है, सॉप के स्ट्रक्चर को कंसिडर करें तो सॉप जो होता है कैसा होता है? इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है उसको टेल बोलते हैं, हेड बोलते हैं फिलिक को, और फॉबिक जो है उसको बोलते हैं टेल। ध्यान रखिए, इसके बारे में पूछ सकते हैं। और आगे ये भी पढ़ेंगे सॉप का जो क्लीनिंग एक्शन जो होता है कैसे होता है, कैसे काम करता है, ये मिसेल जो है कैसे बनाते हैं। हमने क्या लिखा? सॉप जो होता है क्या होता है? C17H35CO सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है। यस, ये आयनिक पार्ट होता है। अब सॉप को कंसिडर, हम इसकी स्ट्रक्चर को कंसिडर करें तो क्या आता है? इसको हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? CH3CH216 CO Na या के पोटेशियम और सोडियम का सॉल्ट। इसके स्ट्रक्चर को कंसिडर करें तो हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? लीनियर स्ट्रक्चर बना तो कैसे बना सकते हैं? सेवनटीन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ पे Na प्लस या K माइनस हो सकता है। ये हाइड्रोकार्बन जो होता है यहाँ से लेके ये जो पोर्शन जो होता है, जो एल्किली ग्रुप होता है, और इसके 2 पार्ट्स शॉप के देख तो ये पार्ट है, ये जो होता है इसको बोलते हैं एल्किली पार्ट होता है। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है और वो आयनिक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट।
ये टेल होती है तो हाइड्रोफोबिक टेल होती है। ये कैसा होता है? नॉन आयनिक यानी नॉन पोलर होता है। सॉफ्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पोलर होता है, दूसरा होता है नॉन पोलर होता है। और ये जो होता है कैसा होता है? पोलर पार्ट होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं। ये टेल होती है, ये क्या होता है? हेड होता है। जब वाटर में जो काम करता है, डिजोल्व होता है, उस केस में क्या करता है? हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है वाटर की सरफेस पे होता है, वाटर के अंदर होता है। और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वाटर की सरफेस के ऊपर होता है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक का मीनिंग होता है वाटर के साथ में। मोर एफिशिएंसी आयनिक पार्ट होता है, पोलर पार्ट होता है ये। और हाइड्रोफोबिक जो टेल होती है वो क्या होती है? वाटर के बाहर होती है। और ये इस टाइप से जो पार्टिकल्स होते हैं मिलके क्या करते हैं? एक मिसेल बनाते हैं। यस, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नॉन पोलर पार्ट जो होता है टेल होती है, पोलर पार्ट होता है वो। नॉन पोलर पार्ट होता है कौन सा होता है? ये हाइड्रोकार्बनिक जो पार्ट होता है वो। और वो आयनिक पार्ट होता है, एसिडेट ग्रुप वाला जो होता है वो आयनिक पार्ट होता है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? सेवनटीन करके गन है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ये सेम का सेम है, हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट है और ये क्या है? दिस इज अ, यहाँ से लेके यहाँ पे दिस इज अ हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट है। नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है। एंड दिस इज अ आयनिक पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है क्या होता है? वाटर में मिक्स होता है। अब वाटर के साथ जो ये मिसेल कैसे बनाते हैं और इसका क्लीनिंग एक्शन जो होता है कैसे होता है? अब मिसेल में क्या होता है? ये पार्ट जो होता है मिसेल जो बनता है, मिसेल कैसे बनता है? सॉफ्ट जो होता है मिसेल कैसे बनाता है? अभी हमने क्या लिया था? एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। इसको यूजली अपन वो वाला पार्ट है, ये आयनिक पार्ट है। और ये क्या है? नॉन पोलर पार्ट है। हाइड्रोकार्बनिक पार्ट जो होता है नॉन पोलर जो है टेल पार्ट होता है, ये हेड पार्ट होता है। हेड पार्ट जो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। हाइड्रोफिलिक का मीनिंग होता है वाटर की सरफेस के अंदर होता है। टेल जो होती है क्या होती है? बाहर होती है। यस, और मिसेल बनाता है उस केस में क्या होता है? ये जो है पार्टिकल्स होते हैं, इस फॉर्म में ऐसे अरेंज हो जाते हैं। बाहर का पोर्शन ये होना चाहिए टेल में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ये आपस में रिपल्शन होने की क्लस्टर बनता है। उस केस में क्या होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट जो हो, टेल जो पार्ट होती है आपस में क्या होता है? रिपल्शन होने की वजह से बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं वो, ये आयनिक पार्ट अब यहाँ पे आता है। ये किसकी वजह से? आपस में जो रिपल्शन जो फोर्स लगता है उस रिपल्शन की वजह से। ये क्या बन रहा है? एक मिसेल बन रहा है। ये आयनिक पार्ट है। यस, ये क्या होता है? आयनिक पार्ट होता है। ये क्या होती है? टेल होती है, बाहर होती है। लेकिन बाहर क्या होता है? इसमें आपस में रिपल्शन होने की वजह से पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर जो डीपली ड्रॉपलेट आ जाते हैं। इसी वजह से जो है ये मिसेल बनता है। इसी वजह से जो होती है क्या करती है? सॉप जो होता है क्लीनिंग का काम करता है। क्लीनिंग में कैसे करता है? क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप के फॉर्म में कंसिडर हम करें तो ये आप 9th-10th क्लास में भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। क्लीनिंग एक्शन में क्या होता है? ये मिसेल जो होता है, क्लस्टर जो होता है क्या करता है? ये जैसे मैंने क्लॉथ लिया है, क्लॉथ के ऊपर क्या है? ऑयल ड्रॉप या डस्ट पार्टिकल है, ये है। इस टाइप से ये क्या करते हैं? बहुत सारे मिसेल जो होते हैं क्या करते हैं? ये डस्ट पार्टिकल जो होते हैं इसको क्या करते हैं? या ऑयल ड्रॉप को क्या करते हैं? कवर करते हैं, घेर लेते हैं। घेर के क्या करते हैं? इसके सरफेस एरिया को क्या करते हैं? मिनिमाइज़ करते हैं। जब सरफेस एरिया मिनिमाइज़ होगा और धीरे धीरे वो ऑयल ड्रॉप जो होती है किस में चेंज हो जाती है? पहले तो कैसी थी? क्लॉथ के ऊपर अटैच थी, तो उस केस में क्या थी? फ्लेटेड थी।
यस जब ये मिसेल जो होते हैं क्या करते हैं, सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या करते हैं, ऑयल ड्रॉप के अंदर जो टेल पार्ट जो होती है ऑयल ड्रॉप के अंदर चले जाती है, हेड पार्ट जो होता है बाहर वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे रहता है कंबाइंड रहता है, एसोसिएट रहता है। उस केस में ऑयल ड्रॉप जो होती है ऑयल ड्रॉप को क्या कर देता है, इस फॉर्म में स्पेरिकल चेंज कर देता है। दैट मीन्स फाइनली जो है ऑयल ड्रॉप जो होती है क्या होती है, एक स्पेयर की फॉर्म ऐसे हो जाती है, ये आयनिक पार्ट है और क्लॉथ से कम्प्लीटली क्या होती है, डिटैच हो जाती है। यस ये सॉप जो है, सॉप का क्या होता है, क्लीनिंग एक्शन होता है। सॉप कैसे काम करता है इसको आप ऑलरेडी क्लास 10th में जो है वो भी पढ़ चुके हो। मिसेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 3 टाइप की क्लासिफिकेशन जो होती है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ साइज, साइज की नेचर के ऊपर कॉलोइडल सॉलिड इसको 3 ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द व्यू ऑफ बॉडी, माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल एंड एसोसिएट कॉलोइडल सॉल्ट। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं। स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, गेट एग्रीगेट टुगेदर टू गेन द रेंज ऑफ कॉलोइडल सॉल्ट। एग्जाम्पल के फॉर्म में जो मेटलिक सॉल्ट सभी इसके एग्जाम्पल है, बिकॉज मेटल जो है, मेटल के आइटम्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत सारे आइटम्स होते हैं कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। माइक्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉलोइडल सॉल्ट बनने से पहले जो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल जिसको बोलते हैं डिस्पर्स फेस पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं। एग्जांपल मेटालिक सॉल्ट है, सल्फर सॉल्ट है, इसके एग्जांपल है। माइक्रो मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही बड़े पार्टिकल्स होते हैं। बड़े पार्टिकल्स क्या करते हैं, गेट एग्रीगेट टुगेदर और वो कॉलोइडल रेंज होती है उसको गेन करते हैं। यस ये रियल में जो ट्रू कॉलोइडल सॉल्ट इसका ही एग्जांपल है किसका, मैक्रो मॉलिक्यूल का, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट है। यस ये सभी कॉलोइडल सॉल्ट इसके एग्जांपल है। और एसोसिएट कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, इसमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कंसंट्रेशन लो होती है उस केस में वो सॉल्यूशन जो होता है क्या करता है, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और जब सब मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो होती है हायर हो जाती है, हायर का मीनिंग होता है अबव द क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, उस केस में क्या करते हैं वो कॉलोइड लाइक एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं मिसेल। मिसेल क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल स्पेशली जो हैं अराउंड द कम से कम 100 पार्टिकल्स होने चाहिए सॉप के, मिलके जो ग्रुप बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, स्पेयर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं मिसेल। यस मिसेल के लिए क्या चाहिए, मिसेल कब बनता है, एक तो क्रिस्टिकल मिसेल कंसंट्रेशन होती है उसके अब होना चाहिए, और टेम्परेचर जो होता है क्या होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर उससे ज़्यादा होना चाहिए। एक मिसेल में नियर द अराउंड द 100 सॉफ्ट मॉलिक्यूल हो सकते हैं। सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, हायर मॉलिक्यूलर मासेस कंटेनिंग फैटी एसिड्स होते हैं जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट कंटेनिंग होते हैं। इसके सॉफ्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। हाइड्रोकार्बन्स पार्ट जो होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है, जिसको हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं। आयनिक पार्ट्स होता है वो क्या होता है, पोलर पार्ट्स होता है, इसको हाइड्रोफिलिक पार्ट्स बोलते हैं। यस इस टाइप से ये जो टॉपिक्स होता है हमारा कंप्लीट होता है, और बाकी वाला जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको जो है चैप्टर समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना बोले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।